News Services Division of All India Radio presents Money Matters. देश और लोगों के वित्त और अर्थव्यवस्था से जुड़ा कार्यक्रम About savings, investments, borrowings and taxations. हिंदी और इंग्लिश में सीधा प्रसारण On our digital platforms. सुनना ना भूलें हर रोज शाम 4:05 से 4:30 तक। Money Matters. Good evening and welcome to the Saturday edition of Money Matters, a financial literacy program on our official YouTube channel and other digital platforms. A program in which we bring you information on personal finance like savings, investments, borrowings and taxation. Today's topic is Cibil and managing your credit score. You can send your queries regarding this topic on email ID moneymatters.air@gmail.com. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मनी मैटर्स के शनिवार के यानी आज के अंक में आपका स्वागत है। वित्तीय साक्षरता से जुड़े इस कार्यक्रम में हमारा आज का विषय है सिविल और व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोर का प्रबंधन। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आप सीधे भागीदारी कर सकते हैं अभी इस पल। हमारा जो YouTube का चैनल है उसके चैट बॉक्स में यदि आप सुन रहे हैं और सवाल पूछना चाहते हैं तो आप अभी पूछ सकते हैं। यदि आप चाहें तो अगले कार्यक्रम के लिए हमें ईमेल कर सकते हैं। आपके सवालों को हम अपने आने वाले अंकों में उठाया करेंगे। हमारा ईमेल आईडी है moneymatters.air@gmail.com। हमारे आज के कार्यक्रम में चर्चा के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ जयंतो दास। जयंतो, मनी मैटर्स में आपका स्वागत है। वेलकम जयंतो। थैंक यू राजेश। सबसे पहले तो जयंतो, हम यही समझना चाहेंगे कि ये जो क्रेडिट स्कोर प्रबंधन है सिविल और पर्सनल कह लें या जो कुछ है, ये क्या है और किस तरह हमारे लोन लेने के कह लें कि साख से जुड़ा हुआ ये प्रबंधन है, इसके बारे में। Let's get the definitions right, Manoj. What is credit score and how is Cibil important in all this? Well, typically it's a 3-digit figure which gives you, we'll discuss today more in terms of the process and how you arrive at a 3-digit figure. But the maximum point is 900. So anything between 300 to 900 which you can get, it speaks of your credit worthiness. The higher the point is, the better you are as a person to give a loan. What's important to understand is what is Cibil and who is Cibil in that sense. A lot of people would, on and off would have heard Cibil and Cibil scores and things like that. Cibil is a company and it doesn't rate your worthiness, it just gives you a rating. So Cibil will never in a list say that yes, money can be given to you. Cibil will not say don't give this money. Cibil just will identify your name with a number which they believe has been arrived at through a complex process. And based on that number, people who are giving loans. So Cibil doesn't take an interference. I mean, a lot of people have a viewpoint believing that maybe Cibil, has a say in whether a loan should be given to you or not, because bankers refer to it that Cibil will not give you permission. So Cibil doesn't have any role whatsoever. It's just an agency. They'll give you a 3-digit figure against your name, and based on that name, the lenders, or if you're going to take a loan, people who are going to take a loan, they'll be assessed, and the assessing company, in this case the banker or the lender who wants to give you money, they take a call. But वो 3 digit तो बहुत important है ना। बेशक आज का तारीख में हमारा सब श्रोताओं के लिए हम तो यहाँ पे मनी मैटर्स का प्रोग्राम में लगातार अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में हमने बात किए हैं, और यहाँ तक कि हम लोग P2P फाइनेंस के बारे में बात की, जहाँ पे पीयर टू पीयर फाइनेंसिंग के बारे में भी बात की है, जहाँ पे आपको 5,000 का लोन चाहिए, 10,000 का लोन चाहिए। तो उसमें सवाल हमेशा राजेश आता है, लोग पूछते हैं कि जब मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जाता हूँ अपना लोन लेने के लिए तो मेरा जांच कैसे करते हैं। तो हम आधार कार्ड, पैन कार्ड, फिर कंपनी का जो भी रिक्वायरमेंट्स है जमा करते हैं। तो ये सारी चीजें लेकर कैसे पता चलेगा, राजेश का या मनोज का या मेरा, सिर्फ आधार कार्ड से तो कुछ पता नहीं चल सकता है। चलिए कुछ हद तक बैंक का डॉक्यूमेंट्स ले लेगा समझने के, तब भी कुछ पता नहीं चलता है। तो वहां पे सिविल का एक बहुत बड़ा दान है। सिविल आपको सालों साल से ट्रैक करते हैं, आपका जितना तमाम अकाउंट्स है वो सारे सिविल एनालाइज करके एक ओवरऑल न्यूमेरिकल एक फिगर में अराइव करके बताते हैं कि जी इनका ये कहानी है ओवरऑल क्रेडिट वर्थिनेस का। यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल ये है जयंतो कि ये सिबिल कैसी कंपनी है, कहाँ की कंपनी है, और जो वित्तीय संस्थान है इसकी रेटिंग को क्यों और किस आधार पर स्वीकार करते हैं। देखिए सिबिल तो सबसे पहले आरबीआई द्वारा स्वीकृत एक कंपनी है।
तो ये नहीं कि सिविल जब मर्जी जहां मर्जी काम शुरू कर दिए, इस तरह का स्थिति नहीं है। और इसके अलावा सिविल के साथ सारे बैंकर्स और तमाम जितना लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस है वो सारे सिविल के साथ अपना डेटा हर महीना शेयर करते हैं, और सिविल उसको क्या करते हैं, उस डेटा को लेके उसको ओवरऑल एसिमुलेट करके उसको एक साथ करके उसको एनालाइज करके उसमें आंकड़े डालते हैं। ये सिविल का काम है। अब किसी का सिविल का स्कोर कांस्टेंट नहीं हो सकता। अगर आप 3 साल पहले अगर आपका स्कोर से फॉर एग्जांपल 680 था, जरूरी नहीं है कि 3 साल बाद आपका स्कोर 680 रहेगा, चाहे आप बेशक कोई लोन ना लिए हो। ये भी लोगों का गलतफहमी होता है। उनको लगता है कि भाई मैंने तो लोन ले लिया, क्यों मेरा स्कोर गिर गया। तो इस तरह की स्थिति होता है। तो ये एक डायनामिक नंबर्स है जो लगातार आपका क्रेडिट वर्थिनेस, आपका रेटिंग, आपका बैंक अकाउंट, तरह तरह की चीजों के ऊपर निर्भर करता रहता है, बदलते रहते हैं। तो कैलकुलेशन कैसे होती है? See, that's a complex method. That's something which is not within the purview of our discussion. But what is important to understand is to arrive at the calculation, we are a set of important parameters ourselves. So that's what we should focus on, because calculation is something which is not in our control, but the parameters which lead to that calculation is within our hands. Certainly. So that's what we should walk our listeners through at this point of time. हाँ, यहाँ पर आपने 3 अंकों की बात की, तो अधिकतम कहा कि 999 हो सकते हैं। न्यूनतम की क्या 300। तो इस 300 से 999 के बीच में मैं समझता हूँ 900 के बीच में वही जानकारी आप देंगे कि हमें, यानी एक व्यक्ति जो लोन लेना चाहता है उसे किन तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उसे अपनी इच्छा अनुसार, आवश्यकता अनुसार लोन मिल सके। देखिए, सबसे पहले तो सिबिल का जो रेटिंग होता है वो निर्भर करता है आप मार्केट में खुद कितना लोन ले चुके हो। तो एक तो आपका डायरेक्ट लोन है जो आप कंपनी से लोन का द्वारा पैसा उठा रहे हो, चाहे अपना 2 पैया वाहन खरीदना या 4 पैया वाहन खरीदना, गाड़ी खरीदना, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, सारे कोई भी चीज आप लेते हो। दूसरा तरह का लोन होता है जो आप क्रेडिट कार्ड का द्वारा लेते हो, चाहे आप बेशक क्रेडिट कार्ड में लोन नहीं ले रहे, लेकिन क्रेडिट कार्ड की यूजेज भी सिविल में बहुत ज्यादा आता है, दिखाते भी है। तीसरा आपको समझना है कि अगर आप किसी और, सोचिए अपने दोस्त से लोन ले रहे हो, वो सारी चीजें सिविल में नहीं आता, क्योंकि इंस्टीट्यूशन से जब लोन लेते हैं तभी सिविल में आते हैं। तो ये सारी चीजें जब होते हैं तो सिविल उसको एक प्रॉपर थ्योरी के थ्रू उसको समझने का कोशिश करता है, और जैसे मैंने कहा पैरामीटर के द्वारा जब नंबर्स लगते हैं, बेस्ड ऑन दैट टिपिकली एक 650 से 700 स्कोर एक अच्छा माना जाता है मोर और लेस। अब ये सवाल है कि जैसे मैंने कहा सिविल निर्णय नहीं लेता है कि भाई इनको लोन देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये एक कंफ्यूजन लोगों का मन में है। हम जब नॉर्मल लोगों से वैसे जब बात करते हैं, आपका लोन नंबर डिटरमिन करता है, वो सिर्फ नंबर डिटरमिन करता है। आपका जो बैंकिंग संस्था है या आपका जो लेंडिंग संस्था है वो लोन अमाउंट डिटरमिन करता है, वो डिटरमिन करता है आपको लोन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अच्छा, एक और चीज है, अगर आप से फॉर एग्जाम्पल लोन नहीं ले रहे लेकिन लगातार आप हर एक कंपनी के साथ जा रहे हैं और जाके बोल रहे हैं मेरे को जी 5 लाख का लोन चाहिए, तो कंपनी आपसे डॉक्यूमेंट मांग रहा है, वो सर्च मारते जा रहे हैं, तो उसमें भी आपका रैंकिंग गिर सकता है। बिकॉज उसमें कहीं ना कहीं सिविल का आंकड़े में आता है कि ये लोन चाहिए, इनको बार बार ये वापस आ रहा है सिविल में सर्च करने के लिए, उसमें भी लोन गिरता है। तो श्रोताओं के लिए सावधानी के लिए एक मैं बात कहना चाहूंगा, सिर्फ मेरे को कितना लोन मिल सकता है या मैं इससे लोन ले पाऊंगा कि नहीं, वो चेक करने के लिए आप सिविल में या कोई इंस्टीट्यूशन के पास मत जाइए। तो फ्रिवलस सर्च या फ्रिवलस डिमांड नहीं करें। सिविल में डॉक्यूमेंटेशन जाता है और उसका भी कहीं ना कहीं आंकड़े जुड़ता है। हाँ, आप खुद अपना रिकॉर्ड जितना बार मर्जी चेक करें, उसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन लोग जो बोलते हैं ना भाई सिविल में जितना बार आप चेक कराओगे अपना नंबर उतना गिर जाएगा, इंस्टीट्यूशन के द्वारा चेक कराओगे तो वहां पे कहीं ना कहीं एक पैरामीटर जुड़ा रहता है कि इनको लोन चाहिए, ये लगातार आ रहा है हमारे पास, इसका मतलब इनको मिल नहीं रहा है। आप समझ रहे मेरा बात? अगर 4 सर्चेज अलग अलग बैंक का द्वारा हो रहा है 6 महीने का द्वारा, तो इसका मतलब चारों बैंक आपको लोन नहीं दे रहा है, तो उसमें भी एक आंकड़े कहीं ना कहीं आके जुड़ते हैं आपका फिगर। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखिए। दूसरा रहा आपका फाइनेंशियल डिसिप्लिन। कोई भी लोन अगर आप एक दिन के लिए डिले कर रहे हो तो वो सिविल में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता है। अब कुछ लोग ऐसे होता है जो सोचते हैं कि भाई मेरा सिविल में नाम आया तो क्या फर्क पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि लगातार अगर आपको रेटिंग गिरता रहेगा, कल का दिन में आपको पैसा नहीं चाहिए होंगे। तो इसका जवाब में कुछ लोग बोलते हैं भाई मैं पैसा आगे से कोई बैंक से लूंगा ही नहीं, उसमें मेरे को क्या फर्क पड़ता है, जाए सिविल में रेटिंग। तो वो डिफॉल्टर्स होता है तरह तरह का। अच्छा, तीसरा बहुत बड़ा डिस्प्यूट होता है खास करके क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट के साथ उपभोक्ता को, जहां पे उपभोक्ता को लगता है कि जी मैं ये 1200 रुपए मेरे को देना है क्रेडिट कार्ड वालों को, क्रेडिट कार्ड वालों ने 1200 रुपए मेरे से लिया और साथ में 450 रुपए का चार्जेस जो गलत है उन्होंने लगाया। तो वो क्या करता है, टेलीकॉलर को फोन करता है, टेलीकॉलर वहां से चार्जेस माफ करके हटा देता है। तो सिविल में ये चीजें रहता है और ये चीजें दिखाया जाता है कि वेव्ड ऑफ हो गया।
तो ये सारी चीजों का ध्यान रखिएगा। अगर आपका लोन वेव्ड ऑफ है या रिटर्न ऑफ है, आपका खाते में आपको जमा नहीं करना है, लेकिन सिबिल का खाता वो नेगेटिव है। कल का दिन में कोई अगर आपको लोन देने आएंगे तो ये देखेंगे कि इन्होंने पैसा भरा नहीं और बैंक का पास जाके वेवर लिए, तो आपको क्या करना है? वहां पे आपको जाके बैंक से एक रिटर्न डॉक्यूमेंट लेना है और उस डॉक्यूमेंट में आपको बताना है, उस डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं लिखा होना चाहिए कि ये पैसा आपको देना नहीं चाहिए था, बैंक ने गलत चार्ज किया या क्रेडिट कार्ड कंपनी ने गलत चार्ज किया, इसलिए पैसा आप भर नहीं लो। तो जब आपका अंडरस्टैंडिंग होगा तो आपको ये इस तरह से पूरा करना है और आपको साथ में ये भी लिख के उनको देना है कि सिविल में आपको इसको दिखाना है नॉट ड्यूज, नो ड्यूज देयर। ये नहीं कि वहां पे दिखा रहा है वेव्ड ऑफ, ये भी सब होता रहता है कहानियां। और अगर ये सारी चीजें आपको कैसे पता चलेगा? अब आम आदमी का सवाल ये रहेगा, चलो जी आपने ये सारी चीजें बता दी, मैं तो अपना तरफ से कर रहा हूं, अब मैं अपना सिबिल का कैसे एक्सेस करूं? सिबिल का वेबसाइट में जाइए, एक मिनिमम पैसा उनका अमाउंट होता है। आज का तारीख में क्या अमाउंट है मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं, बहुत कम रकम है, मेरे ख्याल से 60-70 रुपया, 100-110 रुपये से, आई थिंक 250 के करीब, जो भी है, मतलब वो फिगर एग्जैक्टली हमें पता नहीं। आप वो रकम जमा कीजिए वहां पे और आपको रिपोर्ट वहां प्रिंट आउट में करके आपका मेल में आ जाएंगे। तो मेल में रिपोर्ट को निकाल के अच्छे से पढ़िए। हर नागरिक को चाहिए जो टैक्स भर रहा है, उनको चाहिए कम से कम 3 महीने में एक बार, और उतना भी ना करे तो कम से कम साल में एक बार अपना रिपोर्ट निकाल के पढ़े समझे। ऐसे बहुत सारी चीजें जो आपको पता नहीं है, आपको सिविल रिपोर्ट में नजर आएगा। और आपका क्रेडिट वर्थिनेस के लिए, जैसे मैंने बोला, बहुत जरूरी है। मेरे साथ ऐसे हुआ है 2-3 बार, जिस कंपनी से मैंने कार्ड नहीं लिया उस कंपनी का 150 रुपए का चार्जेस नजर आ रहा है, जिसका कार्ड नहीं है। तो ये सारी चीजें जब भी आप देखेंगे, आपको सिविल में लिखना नहीं है, आपको सिविल रिपोर्ट एनक्लोज करके आपको बैंक को लिखना है, बिकॉज वो सारे इन्फॉर्मेशन बैंक का द्वारा आता है। अगर आप चाहे सिविल को लिखेंगे, जी मैं तो कभी इनसे कार्ड ही नहीं लिया, क्यों आ रहा है, सिविल विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू। You have to go to a bank, the relevant bank which is mentioned there. You have to mention and write that this is the Cibil which has come. I have never taken a credit card from you. There is a charge over here. Please get it removed and show it as no dues. Don't show it as waived or penalty has been, waived, or it has been written off, because waived, written off, all these terms are very detrimental terms when you go in for a credit worthiness. So these things one has to take care of. जैन, तो यहाँ पर ये मैं समझना चाहूंगा कि एक आम कह लें कि व्यक्ति है जो लोन लेने जा रहा है और उसे कोई जानकारी नहीं है, तो उसके अकाउंट के बारे में या उसके कह लें वित्तीय लेन देन के बारे में किस आधार पर जानकारी लेती है यह कंपनी? और दूसरी जानकारी यह चाहिए कि क्या हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वो सिविल से अपना यानी अपने बारे में जानकारी जुटाता रहे? बिल्कुल, अगर आप टैक्स पेइंग हो जी, तो बहुत जरूरी है आपको समझना, चाहे आपको लोन ना भी चाहिए। उसका मेन वजह ये है कि जैसे मैंने कहा कि आपको कुछ पता नहीं कौन सा कहां से आपको वो चार्ज लगा हुआ है, आपको कुछ पता नहीं कि शायद कोई लोन जो आप सोच रहे थे मैंने चुका दिया, वो कहीं पे कुछ खुला छूट रह गया और बैंक उसको राइट ऑफ करके बैठा है। तो ये होता है इंसानों का जिंदगी में, और खास करके शहरों में खास करके लोग वॉशिंग मशीन, टीवी, टू व्हीलर, इन सब के लिए लोन लेते रहते हैं और उनको लगता है चलो भाई, कोई बैंक वाला पूछता है कि चलो भाई सोचिए फॉरन का 60 रुपया रह गया लोन बाकी करने का, 20,000 का लोन लिए 60 रुपये 80 रुपये रह गया, वो आप दिए नहीं, बैंक वाला का वो परस्यू करने के लिए ज्यादा कॉस्ट लगता है, तो बैंक वाला क्या करता है उसे राइट ऑफ करके लोन क्लोज कर देता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो सारी चीज वहां पे रिफ्लेक्ट होता है और ये आपके लिए फिर नेगेटिव हो जाता है। तो एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन सिर्फ ये नहीं बताते कि आप समय के साथ साथ पैसा अपना भरिए जो भी आपने लोन लिए या ऋण लिए, लेकिन साथ में ये भी बताते हैं कि आप अपना स्टेटमेंट लगातार चेक करते रहिए, बिकॉज ये इट्स अ ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ योर क्रेडिट रेटिंग। और आपका अपना क्रेडिट रेटिंग है, इसको बहुत मैटर करता है, चाहे आप भविष्य में लोन ले चाहे ना ले। You're listening to Money Matters on News on AIR official YouTube channel. You may ask questions in the comments section of the YouTube channel you are currently listening to this program on and through our email ID moneymatters.air@gmail.com. विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मनी मैटर्स में। श्रोताओं, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, सिबिल एंड मैनेजिंग योर क्रेडिट स्कोर। यदि आप लोन लेना चाहते हैं और इससे संबंधित अपने बारे में अपनी ही क्रेडिट जानना चाहते हैं, तो आपके लिए यह कार्यक्रम बहुत ही उपयोगी है। हमारे विशेषज्ञ जयंत उदास बता रहे हैं कि हर उस व्यक्ति के लिए जो जिससे जीवन में लोन लिया है या आने वाले दिनों में लेना चाहता है और वो आयकर दाता है,
तो उसे अपने सिबिल के प्रबंधन के लिए जो क्रेडिट स्कोर है उसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। यहाँ पर जो तो एक बड़ा कह लें कि उपयोगी सवाल मुझे लग रहा है कि क्या सिबिल एकमात्र ऐसी कंपनी है या दूसरी भी क्रेडिट रेटिंग के लिए सारे कंपनीज मिलकर बैंक्स मिलकर निर्णय लिया कि सिबिल का रेटिंग सबसे प्रधान माना जाएगा देश में जी। और कोई क्रेडिट रेटिंग कंपनी इंडिविजुअल क्रेडिट रेटिंग के लिए नहीं है और सब यही इनको मानते हैं। दूसरा सवाल ये है कि जो मैं मानता हूं हमें बोलना चाहिए, हमारा ऐसे बहुत श्रोता है जो गवर्नमेंट का छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, 50,000 लाख रुपया 1.5 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट वो लोग उठाते हैं, राइट, टेंडरिंग डाल के। ऐसे बहुत कारोबार या ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन होंगे हमारे श्रोताओं में जी। तो इसमें भी जहां पे आप लोन नहीं ले रहे हो लेकिन बिजनेस का कुछ हिस्सा में आप कहीं ना कहीं टेंडरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो या कोई गवर्नमेंट टेंडर में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो वहां पे टेंडर भरते टाइम भी सिबिल डॉक्यूमेंट मांगा जाता है। अच्छा, उसमें आप सवाल ये कर सकते हैं, जी मेरे को तो गवर्नमेंट कोई लोन दे नहीं रहा है, मैं गवर्नमेंट को सामान बेच रहा हूँ या कोई सर्विसेज बेच रहा हूँ, उसका बदले मेरे को पैसा मिल रहा है, तो सिविल का क्या लेना देना उसमें? बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें भी जैसे मैंने कहा असेसमेंट के लिए गवर्नमेंट देखते हैं ये इंसान जिनके साथ मैं कारोबार करना चाहता हूँ ये इंसान सही है कि नहीं, इस इंसान का बैकग्राउंड सही है कि नहीं। क्योंकि से फॉर एग्जाम्पल जो बंदा का क्रेडिट रेटिंग बहुत बुरा है, से फॉर एग्जाम्पल कोई बैंक से 20 लाख का लोन लिया और 20 लाख लोन नहीं चुका है, तो गवर्नमेंट उस तरह का लोगों के साथ एंगेज नहीं करना चाहता है। चाहे गवर्नमेंट बेशक लोन नहीं दे रहे, गवर्नमेंट बिजनेस दे रहा है उनको, लेकिन एंगेज नहीं करना चाहता है, तो उनका बताता है कि ये जो इंसान है ये सही नहीं है। So, Jayanta, is this the case also for allotment of visas by other countries? Because they see whether a person is credit worthy in his own country. Is he worthy enough to travel? Do they have access to Cibil scores as well? See, the point is, it can be always brought in as a applicant's part of the documents, because all banks, I mean, see, they never say give us these documents, but they do mention give us your last 6 months banking documents, right? Typically in most of the visas when you apply for. But what's important to understand is, if you put in your civil document additionally, so it also to a great extent, spruces up your case, whereby voluntarily, no one stops you. The visa, even none of your embassies stop you from not giving you extra documents so that your case becomes stronger. So, in terms of minimum documents required, Cibil score doesn't come in. But they do take in financial documents, because there is a huge section in all embassies where they say that you should give us some provisions of how you're going to finance your trip, including a financial background. A person, say for example, without a job for the last 2 years or with no, income tax return, can't undertake a 2-month, holiday in US, right? So that's what normal logic says. Unless they also see if there's someone sponsoring you, put the sponsoring person's letter. If he's self-sponsored, he can't produce that much amount of money. But yes, if he brings in a civil report additionally with his bank documents, then it obviously strengthens his case as an individual who has got a fair set of, although strictly speaking, embassies have got no business with your creditworthiness. Okay. So strictly speaking that. So you mentioned, आपने एक बात कही जो I think मनोज के भी दिमाग में है कि कुछ समय पहले आपने बोला ये बात कि आप समय पे टाइम टू टाइम अपनी सिबिल रिपोर्ट चेक करते रहिए। I mean, मेरी वही जॉब है, मेरा वही सब है। 1 साल पहले मैं जो करता था वही कर रहा हूँ, मैंने कोई लोन नहीं लिया, कुछ नहीं किया, फिर भी मैं क्यों चेक करूँ जब मैंने 1 साल पहले ले रखी है रिपोर्ट? वही रिपोर्ट वैलिड आज भी नहीं होगी क्या? देखिए, रिपोर्ट वैलिड तो जब आप लोन लेने जाएंगे उसी वक्त का रिपोर्ट जो वैलिड रिपोर्ट माना जाएगा। सवाल ये है कि आप अपना फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपको खुद को पता है। आप हम जैसे बहुत लोग हैं, आपको भी दोस्तों में मिलेंगे जो बोलेंगे भाई मैं तो पिछले 20 साल से कोई लोन नहीं ले, मेरे से सिविल से क्या लेना देना, राइट? ट्रू। तो विच इज फाइन। लेकिन जैसे मैंने कहा कि कभी कभी जब सिविल रिपोर्ट आपका सामने आता है, बहुत सारे हिडन चीजें आपका सामने आ जाता है। जहां पे मैंने बोला कि कहीं पे आप कोई शॉपिंग मॉल में गए, कहीं पे कोई पर्ची साइन कर दिए, जहां पे वो ऑनलाइन सब क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं ना, और आपका घर में क्रेडिट कार्ड आया, आप थे नहीं, वो क्रेडिट कार्ड वापस चला गया, पता चला 250 रुपए का फाइन आपका नाम पे लगा हुआ है, जो बैंक वाला राइट ऑफ कर देता है। तो ऐसे बहुत केसेस आते रहते हैं। तो वो सारी चीजें आपको अपना सिबिल रिपोर्ट से पता चलता है। So what does the Cibil typical Cibil report look like? Well, yeah, that's a very good question. अगर आप सिबिल रिपोर्ट खोलेंगे तो उसमें आपका तमाम बैंक अकाउंट्स का डिटेल्स मिलेगा आपको। उस बैंक अकाउंट किस एड्रेस में पता चलेगा आपने लोन पे किया नहीं किया। नहीं, वो बात नहीं। देखिए, एक हाईलाइट्स आता है, ठीक है ना, और उसमें ब्रेकअप आता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपका पूरा का पूरा स्टेटमेंट उसमें आ जाएगा।
तो उसमें क्या है कि सबसेक्शंस होता है। अगर आपका 8 बैंक में अकाउंट है, 8 बैंक का डिटेल्स आ जाएगा और उसमें टोटल क्रेडिट कितना पड़ा हुआ है, कितना कैश कितना पड़ा हुआ है, और अगर वहां से कुछ लोन लिए उसका, यानी कि से फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक से जो भी आपका ट्रांजैक्शन है उसका एक सब हेडिंग के हिसाब से आ जाएगा कि स्टेट बैंक में आपका लास्ट 10 या लास्ट 1 मंथ का मोटा मोटा ये ट्रांजैक्शन है, आपका इतना क्रेडिट वहां पे पड़ा हुआ है और आपका इतना लायबिलिटी अगर लोन होगा तो स्टेट बैंक में आउटस्टैंडिंग है, और विद अ लिटिल बिट ऑफ कमेंट। तो उस तरह का बैंक्स का आता है, उसके बाद क्रेडिट कार्ड्स का आता है, उसके अलावा अगर कोई एनबीएफसी वगैरह से लोन ली जो सिविल के साथ जुड़ा है उसका डिटेल्स आ जाता है, और फाइनली आपका स्कोर वो लोग एसेस करके बता देते हैं। तो जब आप वो पूरा लिस्ट देखते हो आपको सारे कहानी उसमें पता चल जाता है। रेड फ्लैग में कब उठाऊं? खास करके तब उठाना है आपको जहां पे कोई एंट्री, जो सब हेडिंग्स का जब मैंने एंट्री बोल रहा हूं, से फॉर एग्जांपल कहीं पे लोन का खास करके जहां पे आपने देखे हो कि भाई इन कंपनी का क्रेडिट कार्ड तो मैंने कभी यूज ही नहीं किया, कैसे यहाँ पे ये लोग मेरा दिखा रहे हैं राजेश लेख का नाम पे, से फॉर एग्जांपल फिलाने बैंक से क्रेडिट कार्ड इशूड हुए और 350 रुपये माफ किया गया। तो उस तरह का सिचुएशन में आप रेड फ्लैग उठाइए, आपको तुरंत पता चल जाएगा। या बहुत बार होता है हमारा जेब में क्रेडिट कार्ड रह जाता है, हम उठा के उसको फेंकते फिर भूल जाते हैं, ऐसे भी होता है। लोगों का क्रेडिट कार्ड भी कुछ लोगों का आदत होता है 10, 12, 15 क्रेडिट कार्ड को सब्सक्राइब करना, फिर उसमें से 5-6 क्रेडिट कार्ड दराज में डाल के रख देते हैं, उसमें कुछ पैसा आ चुका होता है, लोग भूल जाते हैं, घर बदल लेते हैं, एड्रेस चेंज हो जाता है, उनको याद नहीं रहता स्टेटमेंट, तो ये सारी चीजें होता है। तो वो आपको सिविल स्कोर से मोरलेस पता चल जाता है। जैन, तो यहाँ पर ये जानने की मेरी जिज्ञासा बन रही है कि मैं अपना क्रेडिट स्कोर जान सकता हूँ, इसके साथ साथ क्या किसी सामने वाले व्यक्ति का उसका भी क्रेडिट स्कोर समझ सकता हूँ इसके माध्यम से? नहीं, देखिए अपना क्रेडिट स्कोर आप इसलिए जानते हो क्योंकि आपका जो सिविल का जो रिक्वायरमेंट है, आपका पैन नंबर वगैरह वगैरह वो सारे आपसे ले लेते हैं और लेके आप डालते हो और फिर अपना रजिस्टर करते ईमेल और फिर आपको मिलता है, और वो सारे बैकएंड में सब चेकिंग होता है। तो आप किसी को और का अगर आपको जानना है तो वो सारी डिटेल्स आपको भी पता होना चाहिए। अब जैसे जब हम लोन लेने जाते हैं वो कंपनी हमसे डिटेल्स ले लेता है, फिर कंपनी अपना सर्च मारता है। तो अगर आप कोई संस्था से हो और सिविल का मेंबर हो, सिविल सबको मेंबर तो बनाएंगे। हाँ, नहीं, यहाँ ये यानी मेंबरशिप इसकी क्या है उसके बारे में। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ कि अगर आप कोई संस्था से हो तब आप सिविल आपको राइट देता है कि उनका नेम और पैन नंबर डाल के वो सर्च करके बैंकिंग वगैरह क्रेडिट, तो आप उस संस्था से होना चाहिए। इट हैज टू बी फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड लेंडिंग सेक्टर। कोई ऐसे कंपनी जाके सर्च नहीं कर सकते। Okay, how can one increase one's CIBIL score? Well, the best way is maintain an excellent financial discipline, and for that you should, as I said once again repeatedly, check your statement, CIBIL statement, to understand if there are any flaws. If there are no flaws, maintain your financial discipline. Whatever loans you have taken, don't delay it by a day. Your CIBIL score will remain stable. And third thing is, don't go in for loan checks even if you don't want money. So that's the important thumb rule. We find a lot of people not be there at all. Let CIBIL does not even show any curiosity that you have been seeking money, and you actually don't want that money. A lot of people in frivolous attempt, okay, let me check whether bank XYZ will give me a loan of 10 lakhs or not. So you call that guy, you give your documents, he does a search, and you don't want it. And then again after 5 days again you go to some other bank, and then he charges you higher, and I will not take it. So don't do all these frivolous searches. Only when you're genuinely looking for a loan, go in for a proper documentation work to understand it. श्रोताओं, आज हम चर्चा कर रहे हैं सिविल एंड मैनेजिंग योर क्रेडिट स्कोर। हमारे साथ हैं जयंत उदास, वरिष्ठ आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ। कुल सलाह ये मिली कि यदि आपको लोन लेना है तो अपने सिविल स्कोर को लगातार जांचते रहिए, लगातार उसका प्रबंधन करते रहिए। जयंत, तो चलते चलते आखिरी सवाल, यानी कहाँ जाके, यानी राजेश ने पूछा था कि हमें बिल्कुल सतर्क हो जाना चाहिए, कहाँ जाके हमें किन किन उपायों को करना चाहिए, बहुत संक्षेप में। देखिए, खास करके आपको ये देखना है कि जहाँ पे रिपोर्ट में कोई भी ऐसी चीज दिखे जहाँ पे आपको परिचित नहीं लग रहा है, कोई बैंक का नाम, कोई क्रेडिट का नाम, तुरंत आप उस बैंक के क्रेडिट कार्ड को सिविल रिपोर्ट जोड़ के आप उसमें अप्लाई करके उससे बात करिए। बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से जयंतो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। थैंक यू जयंतो। May we remind all of you that tomorrow's topic of discussion is business and professional income computation. Till we meet you tomorrow, same time, same place on the YouTube channel, we say goodbye to each one of you and look forward to being with you on Money Matters tomorrow.